So we have Mr. Sandeep now. He's a famous comedian star. He's from Bangalore, Mr. Sandeep Rao. It was a wonderful session. I thoroughly enjoyed. It rarely happens when one to one on this level. You created a lot of humor, and this is what you are. How you are feeling here? It's great. I actually didn't expect it to be on this scale. Being a part of such a nice festival where there's so many different kinds of worlds meeting. People who are performers, people who are doing advocacy work, people who are doing podcasts like George and the Score Foundation, people like you who run a radio station. So I think it's nice that all of it comes together in such a, I think, nice, fun environment, and I think it's a great initiative. And I think I'm lucky to be invited and be a part of it. How do you perceive the idea of Purple Fest? I think it's necessary, and I'm glad it's being done. Of course, as time goes, everything will change, and a lot more people will be involved. But I think it's a great way to put what work people are doing on the map and bring everyone together, so everyone can kind of discuss where they are and join and kind of share ideas. So I think that it's a really, really great place that things are at right now in India. You had such a hectic schedule. You came yesterday and now you are flying back. So, what did you yesterday enjoy and what are the takeaways? Yesterday, no, I was just in my hotel. I was just reading, and I'm not that active of a tourist. I don't go around, see things. In fact, today I have to head back just to get some stuff done in Bangalore. But I've slowed down my life a lot after the lockdown and taking a break from stand-up. I don't really do much. I kind of spend most of my time at home, and as I said with George, I go to the driving range to practice some golf, and then I spend time with my 20-month-old baby and with my wife and family. So yeah, it's kind of slowed down now, but I really enjoy it after like 11 years of doing stand-up and traveling a lot. Where people can find your podcast and your stand-up, some sort of stand-up bites? So my stand-ups are on YouTube. I put up a few videos. My name is spelled Sundeep Rao, R-A-O. And my podcast is called Soapy Rao Show. That's also, again, on YouTube. It's on Apple, Spotify, Google, Amazon. So yeah, you can just search for my name, Sandeep Rao, that's spelled with a U, or Soapy Rao Show. Thank you, Sandeep bhai, for talking to us. Danish, it was amazing meeting you for the first time, even though we spoke before. Yep. Thanks for having me on this. Thank you. So now we are on a stall. हमारे साथ गजम जी हैं. He is from Hyderabad. He is physically disabled, runs his own organization, also manufacture a lot of things. His company have disabled and non-disabled employees, so he is providing employment to them. गजम जी, welcome to Radio Udan. कैसा लग रहा है आपको पर्पल फेस्ट में? अच्छा लग रहा है. थोड़ा बताएं अपने बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने स्टॉल के बारे में. मैं गजम नरसिंह राव हूँ, हैदराबाद से. फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर द डिजेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें सारा ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, और ब्रेल पर ऑल अभी नया शुरू होने वाला है कोचिंग सेंटर. सर्टिफिकेट कोर्स वी आर कंडक्टिंग. दिस इज 6 months कोर्स. वी आर टू स्टार्ट इन फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स. और हमारा डिजेबल्ड लोगों ने बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट, साड़ीज, फैंसी साड़ीज, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स और हैंडीक्राफ्ट आइटम, लेडीज हैंड बैग्स, साड़ीज में डिज़ाइनिंग वगैरह करते, और कुर्तीज़, सभी इक्कत प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं हम लोग जी. तो इक्कत वगैरह अच्छा डिमांड है मार्केट में. ओके. एंड दैट टू वी हैव in our family 40 national awards. Out of them 2 Padma Shri awards are there in our family. Gajam brothers. Great. From Hyderabad. There's a Puttapaka is Nalgonda district से पहले था. अभी यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट से सारे लोग यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग इक्कत प्रोडक्ट्स पूरे. तो सभी स्टॉलों में लगा के, जहाँ पे भी हमारे को इनविटेशन आया, ऑफर्स आया, तो वहाँ जाके हम स्टॉल लगा के सभी को हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं. तो कैसा है स्टॉल पे, फुटफॉल कैसा है? फुटबॉल ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ा ये हो गया. तो जहाँ जहाँ स्टॉल्स देना है प्रॉपर एक जगह में, वैसा स्टॉल्स देने से क्या है, एक प्रोडक्ट एक जगह, एक प्रोडक्ट एक जगह, वैसा रहेगा. फुटफॉल तो ठीक है, लेकिन हमारा जैसा लोग का प्रोडक्ट जो है ना, सेल्स के लिए उतना ये नहीं है. क्योंकि डिजेबल का जो जितने भी आइटम्स बन रहे
इंस्टीट्यूट वाले और एनजीओस जितने भी आए यहाँ पे और ट्रेनिंग और उन लोगों को मदद करने के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसा अलिम्को वाले कर रहे हैं, वैसा सारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल पर्पल फेस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? Overall, Purple Fest is very good. This sort of organization and festivals to be arranged all over India. It is very useful to all disabled persons. The 21 varieties of disables are there in India. So ये सभी को अच्छा लगता है। सभी लोग पार्टिसिपेट करने से ऑल ओवर इंडिया में स्टेट वाइज भी ये करने से बहुत अच्छा लगेगा। तो सर एक बात बताएं, जो एक मेजर चैलेंज है, जो तो आजकल पढ़ रहे हैं हाँ जी, उनको तो जॉब मिल रही है हाँ जी। प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, हाँ जी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते किन्हीं कारणों से। हाँ जी। उनके पास स्किल्स होती हैं लेकिन उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देता क्योंकि वो पढ़े नहीं होते, स्किल्ड ट्रेनिंग नहीं है उनके पास। तो उन लोगों के लिए ये जो अगरबत्ती बनाना, कैंडल बनाना काफी कामयाब है। हाँ जी। तो वो लोग आपके पास बहुत सारे आते होंगे, और क्या प्लान है उनको जॉब्स देने का? हाँ, आते हम ट्रेनिंग भी देते और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते, उनको थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करके बैंक लोन्स वगैरह फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से थोड़ा हेल्प दिला के हम लोग उनके पैरों पे उन लोग खड़े होके कमाए जैसा हम प्लान कर रहे हैं। तो वैसा बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम। तो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ लोग? फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर द डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन में आप वेरीफाई कर से कॉन्टैक्ट नंबर से में आप कांटेक्ट करके दे सकते हैं। मेरा भी नंबर आप नोट कर सकते हो, 9493041618 मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। एनी टाइम यू मे कांटेक्ट ऑन दिस नंबर, वी विल डेफिनेटली हेल्प देम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। कुछ और जो मैंने आपसे नहीं पूछा जो आप बताना चाहें लोगों को? हाँ, ऐसा पर्पल फेस्ट जैसा कार्यक्रम हम जो फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गोवा गवर्नमेंट और सीएम यहाँ के, कल मिल चुका हूँ उनसे। यहाँ के जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है बहुत अच्छे हैं। एवरीडे इधर आके पर्पल फेस्ट के कैसा चल रहा क्या है देखभाल करके लोगों को क्या क्या होना ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से पूरा अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। ऐसे पर्पल फेस्ट ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। दिस इज माई इंटेंशन एंड बिल्कुल, थैंक यू सर। वाह, पर्पल फेस्ट के में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था बट इंसिडेंटली अनफॉर्चुनेटली मैं पार्ट नहीं ले पाया था, बट इट्स अमेजिंग, यूनिक एंड आई ओपनर एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली। And though individually I have met number of persons, vendors, innovators, but as a face I'm here. आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हमारे? मैं राजेश यादव हूँ और ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस बार लास्ट ईयर आप नहीं आए थे, इस बार आप देख रहे हैं, तो क्या टेकअवेज हैं? बहुत सारे टेक अवेज हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ थिंग। जैसे जो सबसे बड़ी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिफरेंट हमारे इनोवेटर्स और पर्सन्स लेके आ रहे हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हमारी स्कीम्स के लिए बहुत बड़े टेक अवेज हैं। और हम एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एलिम्को, वो जो मैन्युफैक्चर करती है, उन सब के लिए न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हम लोग देख रहे हैं, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, करेंगे और जो भी हमारे PWDs हैं उनके लिए अवेलेबल करेंगे। तो आपको लगता है कि उधर दिल्ली में भी इस बड़े स्केल पे ऐसे इवेंट होने चाहिए? ये जो इवेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा डिपार्टमेंट है वो और गोवा गवर्नमेंट दोनों मिल के कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह का इवेंट अभी हमने नेशनल लेवल पर JNK के साथ भी किया था। And we are motivating other states also to organize such festival in each state actually. थैंक यू सर, हमसे बात श्रोताओं करने को ये बताना चाहेंगे कि राजेश यादव सर जितने भी पॉलिसी लेवल पे इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिसेंटली आए हैं या बीच में आए हैं, सर की वजह से और सर की प्रोएक्टिवनेस की वजह से काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। लेटर आर इज वर्किंग फॉर द डिपार्टमेंट। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। We are 3R actually. Yes, Our absolutely. Secretary sir is Rajesh Agarwal, myself is Rajesh Yadav, and one more yes is Rajesh Sharma. That's why I'm Accessible saying India that campaign. people are, yeah. So RAJ is common.
तो इस राज में कोई राज नहीं है। इस राज में कोई राज नहीं है, एंड अमर इज ऑलवेज विद अस टू प्रोवाइड हिज फीडबैक, मोटिवेशन, sometime little bit criticism, everything नहीं to सर, मैंने correct आज us. तक criticism नहीं दिया आपको। No, it's nice to hear, not criticism, great feedback you can call, it's a corrective steps for us. Well, you are the person who can tell us what should be done correctly, so our policies should be meant for you only. Absolutely. So without you our policies are nothing, everything is for you. Yes. थैंक यू Appreciate सर, the थैंक यू। proactiveness of the department. तो शालिनी मैम है नैब कुल्लू से हमारे साथ। मैम स्वागत, कैसा लग रहा है पर्पल फेस्ट में? पर्पल फेस्ट में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सभी से मिलना हो रहा है एंड सबका काम तो हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे मिलना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बाकी सब लोगों को मिल के जान के कितना क्या कर रहे हैं सब, इट्स वेरी वेरी नाइस। और यहाँ पे तो काफ़ी नई इनोवेशंस भी हैं और ये जो कल्चर है यहाँ पे जो डिसेबिलिटी को लेके वो हमारे हिमाचल पंजाब से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। इसको कैसे देखते हैं आप? आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं अगर सही बात बताऊं तो मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी व्हाट आई एम सीइंग हियर। क्यों? कल ही मुझे स्टैटिस्टिक्स का पता चला कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है वो सिर्फ उनकी पॉपुलेशन में 4000 का फिगर कह रहे थे और इतना बढ़िया रिस्पांस है कि आई एम रियली अमेज्ड एंड थ्रिल्ड। हिमाचल के लिए क्या टेकअवेज है यहाँ से? हिमाचल के लिए सबसे बड़ा टेकअवे तो सिर्फ ये है कि वी हैव टू कम टू दैट लेवल वेयर वी कैन हैव मोर चिल्ड्रन रीचिंग आउट, हम ज़्यादा लोग बच्चों को कर सकें, फेस्टिवल्स कर सकें जहाँ पर वो काम तो ठीक है अलग जगह बट देयर शुड बी समथिंग फॉर फन। सो विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग कि एक्सपीरियंस हैंड ऑन फन इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पर देखने को मिला और वही चीज़ करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैंने नोटिस की यहाँ पे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, रिप्रेजेंटेशन लगभग 0 है। लगता नहीं कि मैं हिमाचल से आई हूँ तो मेरी रिप्रेजेंटेशन कैसी लगती है? 0 हिमाचल को तो 0 बार काउंट करो। गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे तो मैं भी पंजाब से हूँ, लेकिन चाहे वो डिस्कशंस हो, जस्ट दानिश वो हमें और काम गवर्नमेंट से इंटरवेंशन पर करना पड़ेगा। ठीक है, हम जब इंटरवेंशन करेंगे और हम अगर कुछ उन चीज़ों को वहाँ पर हम हमारे को कुछ और करना पड़ेगा। वही तो कह रही हूँ, फॉर फन अगर हम वी नीड टू ब्रिंग देम फॉर फन, मतलब कि हम अपने काम को तो कर ही रहे हैं लेकिन उनको पहले हम अपने फन एक्टिविटीज में एंगेज तो करें, उनको इन्वॉल्व तो करेंगे तो मजा आएगा। बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो हमारे साथ एक सर हैं जो अपने स्कूल के नॉन डिसेबल्ड बच्चों को ये फेस्ट दिखाने लाए हैं ताकि उनमें इंक्लूजन की भावना आ सके। सर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। जी, हमारा स्कूल का नाम है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड हाई स्कूल लोतोली में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर प्रकाश है और हमने बच्चों को हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं या लोग हैं उनके साथ कैसे प्यार से रहना चाहिए, उनके साथ कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, अपना एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सब उनको समझाने के लिए ताकि वो आगे जाकर किसी भी बच्चे का मतलब उसका इंसल्ट न करे। यही हमारा मकसद है। ये थॉट कैसे आया आपके मन में कि हमें ऐसा करना चाहिए? ये जैसे कि ये पर्पल फिश चल रहा है ना हमारे गोवा में, तो ये गोवा के सरकार की तरफ से जब हमें इस प्रकार से इनविटेशन मिला तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे भी इनके साथ मिलजुल कर एक साथ रह सकते हैं, उनके साथ उनका अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं आपको हमारे बच्चों की तरफ से ये सब बताना चाहता हूँ कि हम बहुत खुश हैं और ऐसे ही हमें सरकार ने हर एक मौका देना चाहिए बच्चों को ताकि हम सब एक दूसरे से पहचान सके, एक दूसरे की जान सके और अपने जो भी अनुभव है उसको इस प्रकार से एक दूसरे को दे सके। आपने क्या सीखा नया यहाँ पे? यहाँ पर मैंने सीखा कि हमारे बच्चे जो है आप इस प्रकार के जो हमारे डिसेबल है ये हमारे भाई बहन कैसे क्रिकेट खेल, हम तो क्रिकेट के लिए आए थे, वहाँ पर क्रिकेट खेल उन्होंने बहुत ही मजा लिया। कैसे बच्चे हमसे वो लोग इतने हमारे लिए तो बड़े हैं वो, लेकिन आप भगवान की कृपा से वो सभी छोटे जैसे बच्चे ही हैं। हाँ, फिर भी जैसे भी भगवान ने हमको बनाया है हमको उसी के साथ जीना है और सबके साथ प्यार बांटना है। तो ये बच्चे जब आप यहाँ लेके आए हाँ। तो ये आपसे कोई सवाल पूछ रहे थे आप कहाँ लेके आए हो और इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हाँ, उनको बहुत मतलब बढ़िया लगा उनको कि चलो सरकार ने इस प्रकार का उनको भी एक नया एक्सपीरियंस दिया ना बच्चों को,
तो वो बहुत ही इस प्रकार से यहाँ पर थोड़े से थके इसलिए इधर आकर बैठे, नहीं तो वो क्रिकेट के ग्राउंड पर होते। ओके, खाना तो खाने ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि नॉन डिसेबल्ड लोगों को भी यहाँ लाया गया है ताकि सबको देख सकें, उनके टैलेंट को देख सकें, एग्जीबिशन को देख सकें, और वो जब बड़े हों और डिसेबिलिटी को समझे कि कैसे उनको ट्रीट करना है, कैसे उनके साथ पेश आना है, डिसेबिलिटी क्या है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मेरे साथ 2 वॉलंटियर हैं जो हमें भी गाइड कर रहे हैं। पिछले साल भी आप जुड़े थे या फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये पहली बार है हम लोग। क्या नाम है अपना? नाम बताओ। अनन्या सावंत। आपका? रोजान। ये मेरे से तो बोला नहीं जाएगा। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत थकाना सा है, पर अच्छा है। लाइक नया एक्सपीरियंस मिल गया और हमें लाइक मदद करनी मिली आप लोगों को। ऐसे थक गए आप लोग? हाँ। कितने लोगों को हेल्प किया आपने? बहुत लोगों को, एक गिनती में नहीं होगा। तो क्या नया सीखा? एम्पैथी, उन दूसरों का दुख दर्द समझना, ना ही समझना, लाइक फील करना अपने आप, लाइक अपने आप को उस सिचुएशन में पाना, और वो कितना डिफिकल्ट हो सकता है, वो बहुत क्या बोलूँ, अफसोसजनक है। और तो जब आप यहाँ नहीं थे पहले आपको नॉलेज थी कि डिसेबल लोग क्या क्या कर सकते हैं? नहीं, ज़्यादातर नहीं थी। अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको अपने घर जाके बताना हो तो क्या बताएंगे आप? हमने बहुत सारा कोऑर्डिनेशन किया आज। हम हमारे कॉलेज से हम दोनों ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। तो अनन्या लीडर है, वो सबको कांटेक्ट करती रहती है। अभी तो 3 दिन है, अनन्या तो थक गई अभी से। हाँ। तो कैसे मैनेज करोगे? नहीं, ऐसा है कि हर रोज थकना है, घर जाना है, फिर से रिचार्ज होना है, फिर से आना है। तो लाइक रिचार्जिंग, ट्रेनिंग, सबसे यूनिक चीज क्या देखी अभी तक? सबसे यूनिक चीज ये मत बोलना आपको मतलब नहीं सबसे यूनिक चीज कौन सा इवेंट या कौन सी कोई एग्जीबिशन, कोई एक चीज जो आपको बहुत ही यूनिक लगी? ये जो यहाँ जो ये खड़े किए, बहुत मॉन्यूमेंट्स खड़े किए इधर, वो बहुत यूनिक लगा। मैंने लाइक पहली बार ऐसा देखा है। और इट्स ऑल्सो सेंसरी। हाँ, 3D मॉडल, इट्स सेंसरी, सो यू पीपल कैन, हाँ, वो कैसा क्या है, कैसा बना है, कब बनाया था। वॉलंटियर्स आपको गाइड करते तो अगर आपको मौका मिले तो फिर से आप इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे? हाँ, जरूर। बढ़िया, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। धन्यवाद। तो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, एक स्टॉल पे हैं हम। तो पृथ्वी है हमारे साथ। पृथ्वी बताएं क्या खास है इनमें? ये फोर्ट जब मिलिट्री वालों ने बांधा था, जब कोई बाहर का घुसपैठी अगर अंदर आ जाए तो उन लोग से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो जब पोर्चुगीज आए थे ना, तो तब उन लोग का राज चल रहा था, तो उन्होंने फिर से ये बांधा था, थोड़ा टूटा था, तो उन्होंने फिर से बांधा और अभी तक वो ऐसा खड़ा रुका हुआ है। आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मैंने किया है वो विजिट। तो आपने ये 3D बनाए हैं, लोगों को टच करके फील हो सके। बढ़िया है। ये सक्षम जो मतलब इसमें दिया है ना, स्पॉन्सर किया ना उन्होंने, वो कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर बना के ये 3D मॉडल बनाया है। तो क्या क्या मॉडल्स हैं आपके पास यहाँ पे? अभी ये रियस मोबस है, हम्पी स्टोन का एक मॉन्यूमेंट है, लीडिंग टावर ऑफ पीसा का है, आईफल टावर है। तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं, अच्छे मॉन्यूमेंट्स। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो अब संगत की टीम है हमारे साथ, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। भक्ति जी को तो सुन चुके हैं आप रेडियो पे, तो भक्ति जी है और उनकी टीम है। अपना नाम बता दीजिए सभी। मेरा नाम भक्ति घाटोल है, मैं संगत में काम करती हूँ और मैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। आपका हाँ जी, मेरा नाम अनुष्का है, मैं भी संगत की टीम आईहर के साथ काम करती हूँ। और आपकी बारी। Yes, I'm Joshua. I'm also here from Sangat in the iHear team, and I'm here representing people with ADHD and autism. Okay, so you people have attended today conference for the individual disabilities. Yes. So what is your take on Purple Fest and the conference took place today? So yesterday I think there was a very interesting panel on with several members who have of the panel having chronic pain. I think that was very interesting for me to hear as an audience member.
Today there was a very interesting panel that discussed caregiving as a community effort and support for someone as something continuous care. Sir, tell us the conference you have attended today. So yesterday and today I was able to attend the Invisible Disabilities section of the conference, and for me as someone with an invisible disability, it was really nice to meet other people working in the same field, trying to raise awareness across different fields, across different cities and states. And I really liked the section that talked about insurance and disability certificates and how hard it is for people with invisible disabilities to get an accurate diagnosis and accurate certification, and all the barriers that we face, even not just before getting it, but also after getting it, how sometimes it can be more of a liability than an actual help. So I thought the points raised were very interesting. It was really nice to see people really knowledgeable about things and sharing their expertise with all of us. I felt like there's so much I need to read about my own conditions, about the laws and the policies that I have either access to or don't have access to, and I felt like I learned so much more about what I don't know. How Sangat is contributing or collaborating with Purple Fest? So I did a panel on gender, mental health and invisible disabilities, talking about the experience of LGBTQIA+ persons and their experience with mental health and invisible disabilities. So highlighting how it's a double marginalization, a specific unique challenge faced by queer people who do not have access to affirming care, who do not have access to resources, sometimes family support, societal support, and how that can be compounded when they're dealing with mental health issues or invisible disabilities, because then there are two ways in which they are excluded from society. So I was there to talk about that. I think maybe Bhakti can also shed a bit of light about what she's contributing from Sangat to the Purple Fest. Absolutely. How important Purple Fest is? I think it's really important that there is community, there is visibility of all of the things that commonly we don't get to see. We don't get to see each other. We don't get to see ourselves out there represented in public spaces, interacting just as human beings. So I think this is the kind of sort of gatherings that we need as community to understand that it's okay to be us. And there's so many ways in which there's so much we don't know about each other also. We can get together, learn from each other, and kind of learn how to support each other better. So I feel like this is a really great sort of undertaking. Are you proud of the fact Goa government is organizing this event, because we generally don't see such events? Yeah, I'm glad that a governmental entity has taken responsibility for hosting this and for coordinating all of this. It's nice to see support at higher levels of power. It gives some of us a bit of hope. A lot of us who are traditionally excluded from governing bodies and structures, to see that there is some involvement in our cause. Hopefully that also leads to more of us being included in power structures and in places of power to be able to do stuff like this, representing ourselves here. Yeah. Thank you so much. तो भक्ति जी हैं हमारे साथ. भक्ति जी बताएं पर्पल फेस्ट में ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका. हेलो दानिश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस अभी तक की है, तो कल कुछ सेशन अटेंड किए मैंने और आज कुछ किए थे. कल एक सुबह स्मिता का सेशन हुआ था, जिसमें उन लोगों ने शेयर किया कि कैसे मतलब जब RPDA एक्ट आया और उसमें इनविजिबल डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया कुछ तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज होने लगी. एंड आई थिंक दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग फॉर मी, बिकॉज अभी भी काफ़ी सारे इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ है जो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुए एक्ट, बट देयर हैज़ बीन सम स्टार्ट एंड लाइक हाउ इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ. And therefore, it gives me motivation, like we need to advocate more for other disabilities which are not being included in the act, and we need to strive for that so that everybody gets their rights. एंड आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस हुए जो क्लाइमेट चेंज पे था, कि कैसे क्लाइमेट चेंज स्पेशली इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ के लिए इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है. बिकॉज बाकी फिजिकल डिसेबिलिटी हो या बाकी चीज़ें हो वो शायद दिख जाता है, बट व्हेन पीपल आर इन पेन दे आर नॉट इवन एबल टू एक्सप्रेस देयर पेन, एंड हाउ इट इज़ ओवरऑल लाइक सो मच मतलब कितना ज़्यादा बॉदरसम हो जाता है उनके लिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज की कोई बात ही नहीं करता, राइट? एग्जैक्टली. तो विजुअल डिसेबिलिटी के अवेयरनेस को लेके हम बात कर रहे हैं. तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था ये, और लोगों से आपकी कोई बात हुई, आपने कैसा लोगों का उत्साह था उस कॉन्फ्रेंस में? तो सबसे मतलब ये कॉन्फ्रेंस हुआ ओवरऑल, वही सबसे अच्छी बात मुझे लगी. एंड पूरे 2 दिन डेडिकेटेडली अलग अलग इश्यूज़ को उन्होंने हाईलाइट किए और उस पर पैनल डिस्कशंस रखे.
उन्होंने केयर गिवर का भी पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड किया, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट सेशन। बस एक चाहती थी मैं कि यंग केयर गिवर्स को भी इंक्लूड करें पैनल सेशंस में, ताकि उनका भी पर्सपेक्टिव है कि उनके लिए कैसा या मतलब कैसा डबल जॉब रहता है अलॉन्ग विद लाइक दे मैनेजिंग देयर स्कूल और मैनेजिंग देयर कॉलेज, एंड हाउ दे आर आल्सो केयर गिविंग फॉर द एल्डर पीपल। सो या, Would you like to share something about Sangat? yes, so like Joshua said, Joshua is also representing in the panel, and I am working in Sangat in I here, where we are working for vaccine access, and also another project which I am working for, which is going to understand the accessibility in public health facilities. And tomorrow I am going to talk in a session, in a panel discussion, where I am trying to share like how special codes are important for persons with disability. Thank you भक्ति जी हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. तो हमारे साथ पायल मैम है कलकत्ता से। मैम, किस ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं? मैं पायल धाकप्पा दास, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया कोलकाता चैप्टर। कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोगों से मिलके एक अलग सा एक्सपीरियंस मिला है, इतना सारा सीखने मिला है जो इट्स गोइंग टू टेक अस, मतलब लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहेगा ये। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस भी आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा बीमारी है जो दिखता नहीं है और इसको इसीलिए बोलते हैं इनविजिबल डिसेबिलिटी। सो people who cannot see, if you can't see what is wrong with a person, you will not understand कि उनके साथ हो क्या रहा है। But multiple sclerosis patients equally उतना ही ज़्यादा परेशानी, फिजिकल मेंटल परेशानी उनको होता है। So यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुआ था, जैसे राइट्स को लेके और बहुत सारी चीज़ें, इंक्लूसिविटी को लेके बात हुआ था, which is a very good thing, and it was definitely a worthwhile event. What are the key takeaways? The key takeaways are always be open to learning and always be open about your issues. You have to explain to people in front of you what you're going through. Do not expect magic to happen, क्योंकि ये सिर्फ जो सफ़र करता है उनका ही नहीं है, जो उनके साथ केयर गिवर रहता है उनका भी, उनको इक्वली अफेक्ट करता है। तो केयर गिवर्स का भी इम्पोर्टेंस, केयर गिवर्स को भी इम्पोर्टेंस देना है और जो सफ़र कर रहा है उनको भी अंडरस्टैंड करना है। तो आपको लगता है कि कलकत्ता गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट्स को भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए? हाँ, हम कर रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पे वी आर एजुकेटिंग द जनरल क्राउड एंड वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग अप इवेंट्स टू एजुकेट द केयर गिवर्स अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ इवेंट लाइक पर्पल फेस्ट। डू यू थिंक गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट लेवल it should be extended to all other parts of India? It will be wonderful if every government takes up this initiative. It will be wonderful, definitely. Thank you, ma'am, हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. Thank you. शोभा जी हैं हमारे साथ, थैलेसीमिया मैट्रोमनी रन करते हैं। शोभा जी, कहाँ से आप? मैं बेसिकली बेस्ड फ्रॉम शिरडी हूँ, महाराष्ट्र। और कब से ये ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हैं? हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर 2014-15 से चल रहा है और मैट्रिमोनियल जो प्रोजेक्ट है हमारा थैलेसेमिक्स के लिए, वो 2019 से स्टार्ट है। इट इज ओनली फॉर द थैलेसेमिक? अभी तक हम लोग थैलेसेमिक्स के लिए काम कर रहे थे, बट नाउ वी आर लुकिंग फॉर अदर डिसेबल्ड आल्सो हु आर इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड एंड सेटल्ड। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। यस। कितने लोगों की शादी आपने करवाई अभी तक? थैलेसेमिया कपल्स हमारे अभी तक 20 रहे, 20 सक्सेस स्टोरीज ऑल ओवर पैन इंडिया। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है उनकी मैट्रिमोनी में? सबसे जो ज्यादा बड़ा रिजेक्शन आता है दोनों तरफ से, वो क्या होता है? रिजेक्शन इन द सेंस रिजेक्शन नहीं, बट मतलब उनका चैलेंज चैलेंज ये है कि वो फैमिली प्लान नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, सो दे कैन नॉट प्लान अ फैमिली। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर अदर डिसेबिलिटीज, क्योंकि अगर हम एक अदर डिसेबिलिटी को उनका मैच दिखाएं
तो वो दोनों आपस में मिलके फैमिली प्लान कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको पर्पल फेस्ट में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तक हमारी जो स्टडी थी वो सिर्फ थैलेसेमिया पे थी। इधर आके हमने और भी डिसेबल्ड्स देखे हैं जो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं और अपनी अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी बना के आगे चल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। तो कैसे लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ? कोई वेबसाइट है आपकी? हमारी वेबसाइट है सर www.letshelpsomeone.org और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ शोभा अरोरा 8087648004। तो अभी कोई भी डिसेबिलिटी वाले आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो पर्पल फेस्ट में आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जहाँ ये? जी मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ पर्पल फेस्ट में। तो कितने इम्पोर्टेंट है ऐसे इवेंट? जी बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि ये जो हम अदर डिसेबल्स या बोलो वेरियस पीपल्स को मिल रहे हैं जो कुछ ना कुछ अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो हमें घर बैठ के तो पता नहीं चलने वाला, ये इवेंट्स में ही आके समझ रहा है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस इवेंट? ऑनलाइन ओनली। अच्छा, तो आप लोग सिर्फ देखने आए हैं या कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट तो कुछ किया नहीं अभी देख ही रहे, एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब चीजें। तो नेक्स्ट टाइम से हम पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या खास एक दो चीजें जो बहुत यूनिक आपको लगी? यूनिक ये लग रहा है कि बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। मतलब जैसे कोई चल नहीं पा रहा है बट स्टिल ही कैन डू फुटबॉल एंड ऑल, या कोई देख नहीं पा रहा है और वो आर्ट वर्क कर रहा है। तो ये बहुत यूनिक लग रहा है मुझे देख देख के यहाँ पर। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मोस्ट माय प्लेजर सर। और आगे हम आपसे बात करने के लिए बहुत मतलब वेट करेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हम इसीलिए आए हैं ताकि नेटवर्किंग हो सके, एक दूसरे को हम जान सकें और एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा सकें। जी जी, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर। कर दे। तो अब हमारे साथ कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिकली एंजॉय करने आए हैं पर्पल फेस्ट फन करने आए हैं। हाँ बिल्कुल, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पर्पल फन करने आए हैं। सतगुरु जी हैं हमारे साथ। सतगुरु जी, कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। गोवा का अपना ही मतलब पर्पल फेस्ट तो ठीक है, एक इवेंट है, एक वो अलग चीज़ है, बट गोवा अपने आप में ही मतलब टूरिज्म में अपने आप में एक बड़ा नाम है गोवा का। तो उस पर्पज़ से भी और फेस्ट है तो वो डबल फन हो गया। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। हम कन्वेंशन में भी गए, वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी देखे काफ़ी। तो नई नई आज जो इनोवेशंस हो रही है नई नई वो देखने को मिली। क्या क्या टेक्नोलॉजी में AI का जो मदद लिया जा रहा है, किस तरह से चीज़ें आ रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एज ए विजिटर मुझे एक चीज़ बताएं कि बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं अपना पैसा खर्च के आना। आप यूपी से हैं जी और आप गोवा में आए हैं, तो व्हाट मोटिवेटेड यू कि चलो मुझे जाना है इस फेस्ट में? क्या माइंड में था? वेल, एक तो ये था कि घूमना है। अगर ये फेस्ट ना भी होता तो कभी ना कभी तो इंसान घूमने की सोचता ही है, तो एक वो भी था। दूसरा ये था कि ठीक है फेस्ट है तो बहुत सारे अपनी सेम कम्युनिटी के भी और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जो हैं जिनसे कभी इस तरह के इवेंट्स में ही मिलना हो पाता है, तो उनसे भी मिलना होगा। तो मेरे लिए मोटिवेशन का मेन कारण यही था कि बहुत सारे लोग मिलेंगे पुराने जो जिनसे यदा कदा फ़ोन पे बात होती है या बहुत रेयरली मिलना हो पाता है। तो वो एक मेन फैक्टर था कि चलो इस बहाने ही सही। तो घूमने को तो इंसान कभी भी आ सकता है घूमने गोवा, तो जब भी जब आप आ ही जाओ, जब पैसे खर्च के आना है तो। लेकिन इस तरह के इवेंट्स के जरिए आप फिर उन लोगों से मिल पाते हैं, उन लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो एक पंच दो काज। या पायल है हमारे साथ, फर्स्ट टाइम आ रही है और बड़ी जद्दोजहद की इसने अपनी फैमिली में भी कन्विंस करने के लिए। तो पायल, कैसा एक्सपीरियंस है? गोवा मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ है तो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा है। और मेन मेरा जो पर्पस था वो मेट्रोमोलन मीट था, जो जिनका कन्वेंशन मैंने अटेंड किया, तो मुझे बहुत मज़ा आया। इंटरेस्टिंग। हमें बताओ उस मेट्रोमनी मीट में क्या था, जिन लोगों ने नहीं सुना है अभी तक उस इवेंट के बारे में। तो सुष्मिता भुवना जी ऑर्गेनाइज कर रही थी वॉइस विजन, तो पायल ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमें बताओ उस इवेंट के बारे में। उस इवेंट में काफ़ी लोग थे जिनको आप जानते भी थे, जिनको नहीं भी जानते थे। तो मेन तो पर्पस उनका ये था कि आप काफ़ी लोगों से मिलो। सेकेंडली उसमें ये था कि एक
पूरा उन्होंने फॉलो कर रखा था कि प्रॉपर चैनल से कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कैसे कैसे मीटअप करना है, क्या करना है। तो मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अब बाकी लोगों का तो ज़्यादा टाइम उन्होंने देखा है। तो मुझे जो समझ में आया वो यही आया कि उनका तरीका अच्छा था एक मेट्रोपॉलिटन मीट रखने का, जिससे कि सब लोग आपस में मिल सके। बाकी तो बात की बात है कि होना है नहीं होना, बट कन्वेंशन का उनका जो मोटिव था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई मिला? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मिला, बट हाँ उनकी जो बुकलेट है जो उन्होंने दी है उसमें देखो अभी कोई मिल जाए, क्या पता। बट ये एक बहुत पॉजिटिव था कि उन्होंने इस तरीके से भी बुकलेट एंड ऑल ये सब का भी एक पूरा वो बना रखा था, जिससे कि आपको आगे कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना आए। So overall, having fun. Yes. Great. Okay, so we have Piyush now. पीयूष, कहाँ से हैं आप? हमारे आरजे भी रहे हैं, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। मैं कोलकाता से हूँ। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करता हूँ अपने। मैंने पिछले 8 साल से मैं ये कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने IIM रायपुर से MBA किया है। मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ बाय बर्थ, और विजन मेरा प्रोग्रेसिवली नीचे थोड़ा डिटेरियोरेट हुआ है मतलब फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड। तो यहाँ कैसे, किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे, मुझे जॉर्ज सर ने बुलाया था, जॉर्ज इब्राहिम जो स्कोर फाउंडेशन के फाउंडर है, उन्होंने मुझे बुलाया था। आईवे कॉन्वर्सेशंस करके वो एक स्ट्रिंग ऑफ इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं। उनको 8 जनों का इंटरव्यू लेना है। मैं उनमें से एक था, मेरा इंटरव्यू कल हुआ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्लास 7 के बच्चे जो साइटेड है, नॉर्मल है, उन्होंने अटेंड किया और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने भी समझा कि सेविंग्स कितना इम्पोर्टेंट हो। तो बियॉन्ड डिसेबिलिटी सेविंग्स हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, और बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड या अदर डिसेबल्ड लोगों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और साउंड होना भी बहुत ज़रूरी है। पर्पल फेस्ट एज एन आइडिया, हाउ डू यू परसीव? पर्पल फेस्ट एज एन आइडिया बहुत ही अच्छा है, और थॉट बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि अब इसको इंटरनेशनल भी बनाया है इन्होंने। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने कुछ मेरे भाई भी आए हैं मेरे साथ में, और उनको व्हीलचेयर में बिठा के टेबल टेनिस खिलाया, ब्लाइंड फुटबॉल कराया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है। जो लोग मतलब जिनको गिफ्ट ऑफ ऑल ऑर्गन्स या सब कुछ उनका ठीक से फंक्शन कर रहा है, जो ऑर्गन को वैल्यू नहीं करते हैं, उनको भी अच्छा मैसेज जा रहा है कि एक भी अगर आपका अंग अगर आपसे कुछ टाइम के लिए ले लिया जाए तो लाइफ इजी नहीं होता, बट आपको मतलब रिस्पेक्ट करना है कि बाकी जो डिसेबल्ड लोग हैं या फिर जो जिनका एक पर्टिकुलर ऑर्गन काम नहीं कर रहा है या एक पर्टिकुलर इंद्री काम नहीं कर रहा है, वो कैसे अपने लाइफ इतने अच्छे से जी रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू पीयूष, हमसे बात करें। थैंक यू दानिश जी। अमित जी हैं। अमित जी, कैसा लग रहा है पर्पल फेस्ट में? सर, पर्पल फेस्ट में आके आई एम फीलिंग अमेजिंग। मतलब मैं एटा के गांव में एटा उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाला विकलांग व्यक्ति आज इस पर्पल फेस्ट में आया है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ कैसे विकलांगता को एक नलीफाई कर दिया है टेक्नोलॉजी ने, वो देख के मैं अचंभित हूँ वास्तव में। और अलग अलग दिव्यांगता में कार्य करने वाले लोगों से मिलना, सबको जानना, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को समझना, वो एक ऐसा खुशी देता है अंदर से, जिसको मैं वास्तव में शब्दों से बयान नहीं कर सकता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पे सारे लोग विकलांग ही दिखते हैं मोस्टली, तो ऐसा लगता है कि कोई भी अलग नहीं है। तो सारे के सारे इकट्ठे हैं, और वॉलंटियर्स का यहाँ पे बहुत ही अच्छा सहयोग मैंने देखा। सारे के सारे वॉलंटियर्स डेडिकेटेडली सपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो ये जो प्रयास है गोवा गवर्नमेंट का, उसके लिए वो मेरे हिसाब से बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह के उत्सव भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में होने चाहिए टाइम टू टाइम। तो वो ग्रामीण भारत में रहने वाला विकलांग भी इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के नए नए इनोवेशंस का वो कभी सोच ही नहीं सकता कि वो कहीं जा सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार है, यहाँ पे असिस्टिव डिवाइसेस हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विद किस तरह से
मूक बधिर लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाए विदाउट साइन लैंग्वेज ऑल्सो, कैसे साइन के साथ किया जाए। तो इस तरह के जो नए नए जो इनोवेशंस हैं, ये ग्लोवाट्रिक्स है, ये जो फिफ्थ सेंस की बात कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये विकलांगजनों की लाइफ को अमेजिंग बनाती है और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। तो अमित जी हमारे जावेद अवीदी फेलो हैं, इनके साथ हमारा सेशन है रेडियो पे। तो अगर आप इनकी लाइफ के बारे में और जानना चाहते हैं, जो काम ये करते हैं, तो आप सर्च कीजिए NCPDP रेडियो उड़ान अमित, तो आपको वो सेशन मिल जाएगा। थैंक यू अमित भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Just behind you is My brother is Mr. Arun. So we have National President of Saksham, Mr. Govind from Madurai. This time they have come with 50 people under the banner of IDEA, Inclusive Divyangjan Entrepreneurship Association. They are doing amazing job. Govind sir, welcome. Thank you. And how fascinating this Purple Fest is? Yeah, Purple Fest is really an exemplary one, which is need of the hour. Really, we see many users in the terms of Divyangs are making use of this event to understand the technological development, the accessibility devices, and whichever is not possible to reach or touch from their place, they are able to achieve by attending this Purple Fest. You have come up with 50 people. Yeah. What was the basic idea? See, idea as a project. No, not idea as a project. Idea, why did you come with 50 people? What was the motive behind? Yeah, actually we developed them to become entrepreneurs. So not only funding or giving them training alone will not fetch them the benefit or output. So promoting them and publicizing them is important. So we brought all 50 entrepreneurs all the way from Delhi, crossing 2,500 kilometers, visiting several places, UP, Gujarat, Maharashtra, before reaching this Purple Fest. So exposing their talents and vice versa, they understand the outer world, what is going on and what could they learn from others also. They are getting benefit of learning here at large. It was wonderful, right? You took out the yatra. Yeah. So you sensitized a lot of people and give exposure to the entrepreneur as well. How long it took you and what was the feedback you have interacted throughout? See, 4th Jan, early morning, 4 o'clock they started. They reached our site on 8th evening, 8:30. So such a long, 4 days long journey. They visited, they were supported by many organizations and they were motivated by celebrities like governors, ministers of different states. And they visited several organizations which are working for Divyang, where they train their own inmates into some self-employment or vocational training. So these people who are in the same field are benefited through some their exposure and different idea from that of what they are doing now. So they could promote better and they can add more products to their business. What is Idea Stall? What you are exposing here? As we already mentioned, all their products of 50 entrepreneurs. What sort of products? See, dress there and keychains and all artisans like paintings are there and so many other chains, beads made products. What is the response by ornaments. people?
Yeah, they are appreciating. Many are buying, many are taking information, how they prepare, how they work, how they market, and the response from the public is encouraging and motivating. What is overall experience with the Purple Fest? Yeah, personally I feel this kind of an event should happen in every state, at least yearly once, because Divyangs especially are not affordable to travel such a long distance without the support of organization. So if we conduct this kind of Purple Fest Goa, like we can have Purple Fest Karnataka, Purple Fest Telangana, Purple Fest Delhi, like that, then those local beneficiaries can access from their own places by traveling a little. Yes. If anybody wants to be part of IDEA, if they want to get associated or want some help to become entrepreneur as a disabled, yeah. So how they can get in touch with you? You can. There's a portal called IDEA Divyang Jan, so they can enter and they can register themselves. Through website also they can register themselves. So once they register, they are eligible to get trained. They are eligible to get some financial support also as a seed grant to initiate their business, and they will be given moral as well financial support, employability, skill development, everything we provide, and marketability also is possible. Right. Thank you so much, Govindji, for talking to us. Yeah, thank you. Thanks a lot for the opportunity. हमारे साथ अब अखिल जी हैं नारायण सेवा संस्थान से, और नारायण सेवा संस्थान को कौन नहीं जानता है। कई गिनी बुक्स में इनके रिकॉर्ड्स हैं, कई लोगों के ऑपरेशन फ्री करवाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो अखिल जी बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है हमारे संस्थान में, आप लोग आए। और संस्थान के बारे में सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि नारायण सेवा संस्थान जो गरीब, असहाय, निर्धन लोगों के लिए काम करता है और हमेशा उनके लिए तत्पर जो है हम लोग खड़े हुए हैं। नारायण सेवा संस्थान में बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल लिम्ब, आर्टिफिशियल हैंड्स, आर्टिफिशियल वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं। कैल्पर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। जो बच्चे बचपन से ही अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाते हैं उनके लिए नारायण सेवा संस्थान में फ्री में सर्जरी किया जाता है। सर्जरी के बाद उनको कैल्पर वगैरह प्रोवाइड करा के उनको अपने पैरों पे उनको चलने के लिए सक्षम बनाया जाता है। नारायण सेवा संस्थान इसके अलावा भी जो है निर्धन गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है। जो नारायण चिल्ड्रन एकेडमी है वहाँ पे बच्चों को इंग्लिश मीडियम से जो है फ्री में शिक्षा दी जाती है। और इसके साथ साथ जो सक्षम नहीं है कुछ कर पाने के लिए, उनके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन किया गया जहाँ पे उनको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। उसके साथ साथ हमारे बहनों को जो है सिलाई मशीन की व्यवस्था है जो कि उनको वहाँ पे शिक्षा दी जाती है और एक उचित दर्जा प्रदान किया जाता है। नारायण सेवा संस्थान इसके साथ साथ जो है क्रचेज, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल ये भी प्रदान करती है। सब कुछ सेवाएं नारायण सेवा संस्थान में निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। जी। तो कैसा लग रहा है पर्पल फेस्ट में आके? पर्पल फेस्ट में आके बहुत खुशी हो रही है कि एक बार हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए नहीं, नारायण सेवा संस्थान भी है जो पैसे से सक्षम नहीं है उनके लिए हम लोग कुछ निःशुल्क कर पाते हैं और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सक्षम कर पाते हैं। तो आप इस स्टॉल के माध्यम से यहाँ पे क्या लोगों को अवेयर कर रहे हैं या क्या है आपके स्टॉल में? हमारे स्टॉल में जो है डिफरेंट टाइप्स के प्रोस्थेसिस हैं। जो भाई बहन अपना पैर जो है किसी एक्सीडेंट में या किसी डिजीज की वजह से उनका एम्पुटेशन हो चुका है वो उनको आर्टिफिशियल लिम्ब वगैरह हम लोग प्रोवाइड कराते हैं निःशुल्क। इसके साथ साथ जो भी सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं उनके ट्रीटमेंट भी फ्री निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ जो है स्पाइनल ब्रेसेस, जिनका स्पाइनल कंडीशन बहुत खराब है, डायफोसिल लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस वगैरह हुआ है, उसके लिए भी हम लोग स्पाइनल के सभी ब्रेसेस प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल निःशुल्क। जी। लोगों को जागरूक करने के लिए पर्पल फेस्ट जैसे इवेंट कितने इम्पोर्टेंट है? लोगों को जागरूक करने के लिए पर्पल फेस्ट इवेंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि इसके बारे में अभी बहुत लोगों को
मतलब पता नहीं है कि ये चीज़ क्या होता है, ये आर्टिफिशियल लिम्ब क्या होती है, आर्टिफिशियल ब्रेसेस क्या होती हैं, कैलिपर क्या होता है, इनका उपयोग कहाँ पे होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, नारायण सेवा संस्थान भी एक ऐसा NGO है जहाँ पे निःशुल्क सभी चीज़ें प्रदान की जाती हैं और लोगों को उनके चलने के लिए सक्षम बनाया जाता है। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं जी, या कोई मदद लेना चाहते हैं जी, तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है आप लोगों सबसे इजीएस्ट वे है कि नारायण सेवा संस्थान का संपर्क सूत्र है, वहाँ से आप डायरेक्ट आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी समस्या होगा, उसको जल्दी निवारण किया जाएगा। आपका सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या रहा? मेरा सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस अगर हम बताएं तो हमारा नारायण सेवा संस्थान में सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस गरीब, निर्धन, असहाय लोगों की सेवा करना है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। वेलकम। बताएं इस पर्पल फेस्ट की इस बार कितना चैलेंजिंग था लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली? आई थिंक बहुत सारी नए इवेंट्स थे, लॉट ऑफ कन्वेंशंस, लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, सो इट हैज़ बिन ऑब्वियसली द क्राउड इज मोर, एक्सेसिबिलिटी के और भी चैलेंजेस, इंक्लूजन एट्सेट्रा। बट आप देखेंगे ना रोड पे, जब देर आर पीपल हु इज वन डेफ ब्लाइंड फेलोज वॉकिंग, उसके पीछे 2 व्हीलचेयर के लोग जा रहे हैं, 3 जन अपने केन के साथ जा रहे हैं और खुशी महसूस हो रहा है। लाइक it's like crazy. You're just seeing disability so normalized at the Purple Fest. It's like the place to be. यहाँ ही होना है सबको। लास्ट टाइम चैलेंजिंग था या इस बार? आई थिंक लास्ट टाइम तो चैलेंजिंग था, लेकिन इस बार वो थोड़ा बड़ा हो गया तो और भी चैलेंजिंग है। दोनों टाइम तो, ये टाइम तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। एंड नॉट फॉर मी, इट इज़ रियली द गोवा स्टेट हु हैज़ मैनेज्ड सो मच। बहुत ही मुश्किल है उनका काम। एब्सोल्युटली। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट करवाने के पीछे क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहते थे? मैंने एक टाइम बोला है, एक्चुअली लास्ट ईयर IIM में जब भी हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था, मैंने बोला, एंड देयर इज अ रीजन फॉर सेइंग दिस, कि इंडिया कैन लीड द वर्ल्ड इन डिसेबिलिटी एक्सेलेंस। आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने पूरे कंट्री को छान मार के आई कैन टेल यू देयर आर वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द स्पेस ऑफ डिसेबिलिटी। फ्रॉम बर्थ टू डेथ का साइकिल होता है ना डिसेबिलिटी का, कहीं भी आपका, व्हाट आई मीन, इट इज लाइक फ्रॉम अर्ली इंटरवेंशन टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर जगह, एंड देन डेली नीड्स में, फ्रॉम मोबिलिटी टू ट्रैवल टू हॉस्पिटैलिटी, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली बिकॉज वी आर अ बिग कंट्री और ये सब है, इसके लिए वो दिखता नहीं है। तो पर्पल फेस्ट में आपको दिखेगा, एंड जब आप देखेंगे उससे प्रेरित होकर आप वापस जाके आप भी अपने एरिया में वो इसको बोलते ना बम विस्फोट करना पड़ेगा। कर्नाटक में कब करवा रहे हैं? क्या पर्पल फेस्ट? ये सब मेरा ये नहीं है, इट इज द गवर्नमेंट, दैट इज द ब्यूटी। पर्पल फेस्ट का ब्यूटी है कि गवर्नमेंट ने इसको एक ओनरशिप लिया है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो स्टेप्ड इन, राइट? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो इंटरनेशनल लोग को आके देखना है हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो अमेजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हाँ उसको, इफ यू कैन डू समथिंग इन इंडिया इट विल स्केल टू द वर्ल्ड। तो हम डिसेबिलिटी एक्सेलेंस को करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि एक्सेलेंस है पॉकेट्स में, बट वी हैव टू मेक इट विजिबल, एंड देन वी विल मेक श्योर इट इज एम्पलीफाइड, वी डू मोर इन इंडिया, एंड देन वर्ल्ड को दिखाना है। टैन टैन टैन। Shanti Raghavan is a very big name. When Purple Fest is happening in Karnataka? अरे यार, ये बिग नेम नहीं, मेरा बहुत छोटा नाम है। मेरा नाम शांति है, बहुत छोटा है। नहीं, ये सब it's the government's responsibility. We are only enablers, right? Enable India. This time we have been part of a committee. More importantly, that's what I'm very proud of, that this time we are part of a committee where there are more actors. You've got NCPDP in it, you've got Rising Flame in it, you've got different actors, and that is why you could conduct a larger event, है ना? नहीं तो नहीं होगा। एंड फॉर अस, मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिसेबिलिटी सेक्टर हैव टू बी पार्ट ऑफ दीज कमिटीज। बट द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इंक्लूजन जो है वो सेंट्रल होना है, सेंट्रल होना है। That means when there's a lighting of the lamp, I want you to know who is lighting the lamp with audio description. If there is some beautiful music playing, the deaf is only seeing उसका mouth खुला हुआ है, वो deaf को क्या समझेगा? So they have to see the sign language with dancing, and उसको ऐसा मजा आना चाहिए कि मैं भी म्यूजिक को एंजॉय किया। एंड व्हेन देयर इज अ डांस गोइंग ऑन, आई वांट द ब्लाइंड पर्सन टू नो कि क्या अद्भुत चमत्कार हुआ, वो व्हीलचेयर को ऐसा घुमाया और ऐसे ऊपर उसके ऊपर खड़ा हुआ। दैट्स इंक्लूजन। सो पर्पल फेस्ट का हार्ट इंक्लूजन है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू दानिश।